how I got introduced to you was also for what you wrote about Osho, and then I discovered you. And you were one of the few people who's written a beautiful piece about Osho. But what drew me towards Osho was him saying laughter is spiritual health. And him always defining that humor has a place in religion, dance has a place in religion, song has a place in religion. And now you have come and given your time to me, who is a comedian. So, what is your standpoint on this, and how do you see Osho right now? The first thing, I'm not talking to you, the accomplished comedian. I'm talking to a human being, talking to a human, just as I asked, talk to anybody else. Secondly, definitely, humor is one of the delights of life. लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि जहां पर लोग ऐसे हों जो जिंदगी को बहुत गंभीरता से ले रहे हों, जो अपनी चिंताओं, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं में खूब दबे हुए हों, एकदम जिंदगी ने उनको कचूमर निकाल दिया हो, उन पर इतना बोझ डाल दिया है कि वो डल हो गए हैं, नीरस हो गए हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग होते हैं, तो वहां पर अहंकार के विरुद्ध एक विद्रोह जैसा होता है ह्यूमर. आपकी ईगो आपसे कह रही है टेक मी सीरियसली, और आप ईगो को कहते हैं ठेंगा, मैं हंस रहा हूं. तो तब जो ह्यूमर है, हास्य है, तब वो एक स्पिरिचुअल चीज बन जाता है. लेकिन इसके विपरीत भी एक स्थिति हो सकती है जहां पर आपका जो हास्य है, जो ह्यूमर है, वो अहंकार को ठेंगा नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो अहंकार की धुन पर नाच रहा है. तब ह्यूमर गड़बड़ भी हो सकता है. ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से. बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए. People are looking at how the girl is dressed because she's getting the attention. So is it a package that because she gets the attention she has to be… Yeah, she has to dress well because she has to be pleasant to our eyes because we're looking at her. और कहाँ गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स? अब आपको दिखाता हूँ इंडियन फिलोसफी की ताकत. जो डेकार्ट ने कहा था, डेकार्ट ने भी क्वेश्चनिंग को ही इंपॉर्टेंस दिया था. उन्होंने बताया था कि आप हर चीज को क्वेश्चन. अरे घोंचू था वो, किसकी बात कर रहे हो सर? डेकार्ट को हम ये बातें यहाँ पे कर रहे हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसको पब्लिश करोगे. जैसे ही किसी को इनमें से कोई बात चुभने लगेगी, या जैसे ही किसी को लगेगा कि अब कोई ऐसी बात बोल दी गई है जिसको डिनाई नहीं कर सकता, तो बहुत लोग हंसना शुरू कर देंगे, देखो बैठे हो बेकार की बात कर रहे हैं. अब ये जो ह्यूमर है, ये क्या है? इट बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ईगो. So like everything that we do, we have to be mindful of the center it is coming from. As long as humor is coming from the right center, obviously it's a beautiful thing. पर काफी लोगों की हंसी भी कोरियोग्राफ्ड हो जाती है थोड़े टाइम के बाद ना. Like everything else in life. Like everything else in life. आपने जब ऑथेंटिसिटी को अपनी बिल्कुल ही दफन कर दिया हो, तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि सच्चे आंसू कैसे होते हैं, सच्ची मुस्कान कैसी होती है, सच्चा कुछ भी कैसे होता है. वो जैसे व्हाट्सएप पे लॉल लगाते हैं, वैसे जिंदगी में भी लॉल लगा रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी ये तो नकली हंसी हो गई. हंसी नकली और असली कुछ होती ही नहीं है. ए शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, अबे कुणाल चुप ना. शट अप या कुणाल, ए शट अप या कुणाल, या कुणाल. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Shut Up Ya Kunal. Today we are discussing spirituality, and I am joined by Acharya Prashant, one of my favorite teachers of spirituality, because with spirituality he takes you down the path of rationality too. Welcome to the show, sir. Full disclosure, I have met you in a personal capacity. You were kind enough to give me time, and I was really happy with that. It really helped me in a positive way. So thank you for that. धीरे धीरे अपन को गुरुजी का प्यार भी मिला. And today I'll start with my questions. Welcome, Kunal. So most of the questions are questions that are on the top of other people's mind, questions that me and my team have been thinking about. So I would present the questions. Not every question would be mine. Some of them are mine.
What is the utility of spirituality and what are the illusions it needs to break from? In some sense, only spirituality has utility. हम इतना कुछ करते रहते हैं, आप कुछ करते हो, मैं कुछ करता हूँ, यहाँ पे सब लोग हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं क्यों करते हैं? ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कमाने खाने के लिए कर रहे हैं या अपने किसी और इंटरेस्ट के लिए, सुख प्लेजर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि भीतर जो बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, वो शांत हो जाए। तुम कुछ भी कर रहे हो उसमें ऑब्जेक्टिव स्पिरिचुअल ही होता है। क्या है स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव? कि भीतर जो बेचैनी है, जो परेशानी है, वो हटे। इससे हम अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की जो बिल्कुल सही परिभाषा है उस पर आ गए हैं। वो ये है कि मन अपने आप में जन्म से ही और पूरी जिंदगी भर एक रेस्टलेस एंटिटी होता है, एक बेचैन चीज। उसको शांति तक, चैन तक, समझ तक लेकर जाना ही स्पिरिचुअलिटी है। फिर पूछा कि इसके इर्द गिर्द इल्यूजन्स क्या हैं? तो जो बात अभी हमने कही, उसके अलावा अगर स्पिरिचुअलिटी की कोई और डेफिनेशन है तो वो इल्यूजरी है। Spirituality is not some nonsense up there. It is about becoming available to life process in its fullest possibility. In which condition would you become more available to the life process? If you're in utmost pleasantness, you become more and more available to everything around you, isn't it so? Right now you're feeling very happy. This one comes and asks some stupid question. You're okay with her. That one comes and asks something else. You're okay with her also. This one comes and even tries to say something nice to you. Turn off his camera. Enough. Even Sadhguru needs an engineer. It's a good thing, yeah, correct. शांति दो तरह की हो सकती है, एक असली वाली, एक नकली वाली। जो असली वाली है उसको बोलते हैं नॉन डुअल, और जो नकली वाली होती है वो ड्यूअलिस्टिक होती है। ड्यूअलिस्टिक शांति क्या होती है अभी समझेंगे। आप बहुत अशांत हो जाइए, आप एकदम एक बेकार सा नासमझी का जीवन जिए तो आप बहुत अशांत हो ही जाएंगे। आप जब बहुत अशांत हो जाएंगे उसके बाद उससे आपको जैसे ही थोड़ी रिलीफ, थोड़ी राहत मिलेगी तो आपको ऐसा लगेगा बड़ी शांति आ गई। आप गलत गाड़ी चला रहे हैं, आपका चालान कटने की तैयारी हो गई और वो आपसे कह रहा है आपका 10,000 20,000 का चालान कटेगा, और अब दिमाग अशांत हो गया क्योंकि 20,000 जा रहा है सीधे सीधे। इतना ही नहीं, वो कह रहा है कि आपका वाहन भी जब्त हो जाएगा। आप अशांत हो गए हैं। फिर किसी तरीके से वो मान जाता है, वो आपको छोड़ देता है तो आप शांत हो जाएंगे। ये शांति नहीं है, ये डुअलिस्टिक है। डुअलिस्टिक मतलब ऐसी शांति को पाने के लिए पहले अशांत होना पड़ता है। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जो नॉन डुअल पीस होती है वो बिल्कुल दूसरी चीज होती है। उसके लिए आपको अशांत होने की जरूरत नहीं है, उसमें आप लगातार शांत हो ही, और फिर बाहर अशांति चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है माहौल में वो भले ही चलता रहे, भीतर ही आपकी शांति में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी आपको ये मंदिर के और मस्जिद के झगड़े से कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद भी रहे और मंदिर भी रहे? कोई नहीं, हम तो जाके मंदिर में ठहरेंगे। एक मंदिर में, यहाँ एक मंदिर है सागरिया पट्टी में, वहाँ ठहरेंगे। तो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, इसलिए कि आप जान सको कि आप जिस चीज के पीछे अपनी जिंदगी लगा रहे हो वो चीज इस लायक है भी या नहीं है। 2024 तक मंदिर की पहली मंजिल तैयार हो जाएगी। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहा भव्य और दिव्य राम मंदिर पीएम मोदी और सीएम योगी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। और आज पूरी दुनिया में लोग जो है भारत की ओर देख रहे हैं, और लोगों को ये पता है कि अगर विश्व शांति चाहिए तो भारत की ओर देखना होगा, भारत से सीखना होगा। अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि ये जो आपको शांति भी मिल रही है
ये असली नहीं है। असली इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको पता है कि आप इस तक पहुंचे कैसे, और आपको ये भी पता है ये टिकेगी नहीं, इसके बाद फिर से जो डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस है, अशांति, वो आने ही वाला है। तो एक बहुत डरी हुई शांति है, वेरी अफ्रेड पीस। ये शांति कौन सी है? जो डरी हुई है, इनसिक्योर है, क्योंकि इसको पता है कि इसके फंडामेंटल सॉलिड नहीं है, जुए पे टिकी है। जुए पे टिकी है। भाई आपकी किसी से रिलेशनशिप ही खराब है, ठीक है ना, आप उसकी उल्टी सीधी डिमांड्स मान करके शांति ला दो कि चलो यार लड़ते नहीं है, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो मैंने उसको सबमिट कर दिया, मैंने मान लिया उसकी बात को, शांति हो गई। लेकिन क्या आप जानते नहीं है कि ये शांति टिकेगी नहीं, फ्रेजाइल पीस है बिल्कुल, और आप डरे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि कोई भी छोटी सी चीज होगी ये शांति भंग हो जाएगी। तो इसलिए इस शांति में कोई फायदा नहीं है। देखिए स्पिरिचुअलिटी बहुत एम्बिशियस लोगों के लिए होती है। जो फंडामेंटल प्रेमाइस है वो ये है कि हम सब चाह एक ही चीज को रहे हैं। उस चीज को कभी रियलाइजेशन कह देते हैं, कभी बोध कह देते हैं, कभी शांति कह देते हैं, कभी मुक्ति कह देते हैं, लिबरेशन। लेकिन जितने भी इंसान हैं, जितने भी सेंटिएंट बीइंग्स हैं, उन सबको वो चीज चाहिए ही चाहिए। देखो हम सब पैदा होते हैं बड़े प्यासे, बड़े अतृप्त, बड़े इनकम्प्लीट, तो हमें कुछ चाहिए। आप हो, मैं हूं, ये हूं, वो हूं, वो हूं, हम सबको कुछ चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कंप्लीट है, अपने आप में एब्सोल्युटली फुलफिल्ड है, ऐसा कोई भी नहीं होता। अब कोई व्यक्ति है जो प्यासा है, आप उसको बार बार एक ही बात बोल रहे हो, उधर पानी नहीं मिलेगा, वो कहीं और जाता है वहां भी नहीं मिलेगा, वहां भी नहीं, इतने से नहीं होगा ना। और अगर उसको प्यास लगी ही है तो भले ही उसको बहुत कम उम्मीद हो कहीं पानी मिलने की, वो उसके भरोसे भी उधर को चल देगा, वो बैठ तो नहीं सकता। आपको बहुत प्यास लगी है, आप एक जगह बैठोगे नहीं, ठीक है। आपको कहीं पर एक फेक होप भी दिख रही होगी कि उधर मिल सकता है पानी, आप उधर को चल दोगे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई मोस्ट पीपल आर वर्किंग एंड एक्सर्टिंग देमसेल्व्स ऑल देयर लाइफ। उनको भी कहीं ना कहीं ये पता होता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उससे उनको फुलफिलमेंट मिल नहीं रहा। लेकिन मूल बात यह है कि आप अनफुलफिल्ड तो हो ही ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये उनको पता नहीं कि क्या करना है, तो कुछ भी करने लग जाते हैं। और मार लगाओ। हर व्यक्ति अपनी समझ से कुछ कर रहा है शांति पाने के लिए, फुलफिलमेंट पाने के लिए। आप उसको बोल दोगे बस थम जा, तो वो ऐसे नहीं थम पाएगा। उसको साथ ही साथ कुछ और भी दिखाना पड़ेगा। ये वेदांत का तरीका है। वेदांत का क्या तरीका है? The student comes and the student and the teacher they engage in a conversation. The teacher's words are in the negativa always, but the teacher's presence is affirmative. सामने स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट जो कुछ भी बोलता है टीचर उसकी बात को काट देता है। स्टूडेंट की जो भी बिलीफ्स हैं टीचर बताता है देखो यहाँ गलती कर रहे हो, दिस बिलीफ इज अनफाउंडेड ऑन सच रीजंस। तुम्हारी ये बात भी है, ये बात भी इस तरह से गलत है, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वहां भी नहीं मिलेगा। तो वो जो कुछ भी अपना पूरा यूनिवर्स लेकर के आया होता है टीचर उसको डिसमेंटल कर देता है। लेकिन टीचर सिर्फ उसको यही नहीं बताता कि एवरीथिंग इज टू बी ड्रॉप्ड एंड रिनाउंस्ड एंड रिजेक्टेड। टीचर की जो प्रेजेंस होती है वो स्टूडेंट को ये भी बताती है कि ये सारा कचरा जो मुझे हटाना है उसके आगे भी कुछ है, और उसका प्रूफ क्या है? द टीचर हिमसेल्फ इज द प्रूफ कि कुछ आगे होगा जरूर। क्योंकि अगर सब कुछ ही ऐसा होता जो हटाने लायक है तो टीचर कहां से आता? टीचर कहां से आया? सो दैट्स द वेदांतिक मेथड। इसको कबीर साहब ने ऐसे बोला है कि अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट।
तो जो चोट है ये नेति नेति की प्रक्रिया है कि हटाओ हटाओ, जो कुछ भी गंदा है हटाओ, लेकिन भीतर से सहारा भी दे रखा है। वो सहारा बहुत सूक्ष्म होता है, वो सहारा पता नहीं चलता, लेकिन उस सहारे के बिना काम नहीं चलेगा। इसीलिए आप अगर सिर्फ ड्राई रेशनैलिटी को पकड़ लोगे, जहां आप बताते हो कि ये सब भी गलत है वो सब भी गलत है, तो आपकी हालत लगभग उन एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स जैसी हो जाएगी जिन्हें आत्महत्या करनी पड़ी थी। उनको ये तो दिख गया था कि यहाँ कुछ भी पाने लायक नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दिया था कि कहीं पर रस भी हो सकता है। Somewhere there is delight in life as well. ये फिर उनको नहीं दिखाई दिया। जब दिखाई नहीं देता तो आप कहते हो to be or not to be, मरी जाओ। Existentialism is very common in people who pursue arts. Because they can't find meaning in arts then. And anybody who has intellect of any depth will always encounter this question. Is life worth living at all? स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही लोगों के लिए, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कभी भी प्रचलित नहीं हो पाई, क्योंकि आम आदमी अपना काम छोटी शांति डुअलिस्टिक पीस से भी चला लेता है, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से भी चला लेता है, फ्लिम्जी लव से भी चला लेता है। जो स्पिरिचुअल आदमी होता है वो कहता है नहीं, अगर प्रेम है तो पूरा होना चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए जिसका फिर कोई अंत नहीं होता, जिसमें कोई डर नहीं होता, जिसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो कोई आप सतही चलता फिरता जवाब दे दें, मैं मान नहीं लूंगा। मुझे बिल्कुल जड़ तक जाकर के समझाओ। जैसे उपनिषदों में जब बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं स्टूडेंट टीचर के, तो वहां पर जो स्टूडेंट है वो आप पाओगे बड़ा जिद्दी होता है, वो टीचर को छोड़ता ही नहीं है। ऐसे भी उसमें उल्लेख हैं जहां पर जो गुरु है, टीचर है, वो एकदम नाराज हो गया है। गार्गी मैत्रेयी हैं, वो उनका आता है, वो याज्ञवल्क्य से सवाल कर रही हैं और वो सवाल उनके इतने जबरदस्त हैं कि एक जगह पर आकर के ऋषि कहते हैं और सवाल पूछोगे तो ना सर फट जाएगा। तो अध्यात्म ऐसे लोगों के लिए जो पूछते ही जाएं, पूछते ही जाएं, पूछते ही जाएं जब तक कि बात के एकदम अंत तक ना पहुंच जाएं। Yeah, but a lot of people are of the opinion that, or maybe it's a question on my mind, is India too religious to be spiritual? Obviously. It is. Obviously. भारत में असली आध्यात्मिक लोग बहुत बहुत कम हैं, बहुत ही कम है, और उसकी बहुत बड़ी वजह धर्म है। देखिए, भारतीयों से भी बात करता हूं, विदेशियों से भी काफी बात करी है। विदेशियों को समझाना कई बार ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग, उनकी जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग धर्म को पीछे छोड़ चुका है। एग्नोस्टिक्स हैं, एथीस्ट्स हैं, जैसे भी हैं, रेशनल हैं। तो उनको अध्यात्म की तरफ ले जाना बहुत आसान पड़ता है, या कम से कम ज्यादा आसान पड़ता है भारतीयों की अपेक्षा। भारतीय आदमी होगा, धार्मिक होगा, और धार्मिकता के नाम पर उसके पास अजीब कहानियां होंगी, अजीब तरह के विश्वास होंगे, अंधविश्वास होंगे। अब आप उसको विशुद्ध अध्यात्म की तरफ ले जाओ जहां बस मन है और आत्मा है, तो उसको समझ में ही नहीं आता ये बात कैसी हो रही है। आपके मन में रूप, आकार, रंग, स्मृति, आकृति, इनके अलावा कुछ और है? बताइएगा। सर आपका आकार है? कहते हैं हाँ हमारा आकार है। अच्छा, आपके पिताजी का? हाँ उनका भी आकार है। अच्छा, आपके दादाजी का? उनका भी आकार है। आपके लकड़ दादे का? हाँ उनका भी आकार है। अच्छा, और वो परमपिता? वो निराकार, वो निराकार। जो बड़ी से बड़ी औषधि है, हम उसको भी अपने लिए जहर बना लेते हैं। हम श्री कृष्ण को भी रूपवान कर देते हैं। ये गजब मत कर देना कि जैसे 50 चीजें लगातार याद रखते हो, वैसे ही तुमने श्री कृष्ण की कोई मोरपंखी छवि भी याद रख ली। मतलब किसी की इंसल्ट करने का तरीका है, इंसल्ट करने का तरीका। कहते हैं हाँ भाई बहुत महान है, लेकिन वो नहीं है। तो ये क्या बात हुई भाई? तो इससे निराकारवाद एक तरह का नास्तिक सिद्धांत है। अरूप औषधि है, दवा है, काट है सब रूपों की। रूप कटेंगे तभी तो मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तभी तो मन आत्मस्थ होगा। सोचो किसी का आधार कार्ड हो, उसमें रोशनी हो उसकी फोटो में, कहते हैं सर बंदा कहाँ है? कहते हैं बस यही है वो बंदा। कहते हैं कि बंदे का हाथ पाँव ना कुछ तो हो भाई।
और इंसान यही करता है, खुद वो उठता नहीं है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, वो श्री कृष्ण को भी खींच के नीचे अपने तल पे उतार देता है, अपने ही जैसा बना देता है। तो हम रिलीजियस लोग हैं, हम ट्रेडिशनल लोग हैं, हम आध्यात्मिक लोग नहीं हैं। भारत में आध्यात्मिक लोग बहुत बहुत कम हैं। हम रूढ़िवादी लोग हैं, हम रूढ़ियों का पालन करेंगे। रूढ़ियां आप समझते हो ना, रिचुअल्स। हाँ, हम और इन्हीं सब चीज़ों को हम धर्म समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरे मोहल्ले में फलानी प्रथा चलती है, मैं भी उसका पालन करता हूँ, तो मैं धार्मिक आदमी हो गया। ये जो गड्ढमड्ढ हुई है, जो मिक्सचर हो गया है, जो कन्फ्लेशन हो गया है, ये जिसमें हमने एक खास तरह के कल्चर को रिलीजन मान लिया है, ये बहुत खतरनाक बात है। और यही काम अब पॉलिटिकल लेवल पर भी हो रहा है, जहां पर इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि एक तरह का जो कल्चर है वही तो रिलीजन है ना। भारतवासियों के कष्टों को देखने और समझने वाला कोई नहीं था। फिर अब क्या हुआ मुनिराज? कई दशकों के बाद नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति का अवतरण हुआ है भारत की पावन भूमि पर। हे मुनिराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी कौन है? पतित पावन पुण्य आत्मा है नरेंद्र मोदी। तो मेरे विचार से राम का अवतार है इनका, क्योंकि दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है, तो ये राम का अवतार है ना। ना, बिल्कुल भी नहीं। अध्यात्म के सामने परंपराएं, मान्यताएं, संस्कृतियां बहुत छोटी चीज होती हैं, बहुत छोटी चीज होती हैं। एक ही चीज होती है जो टाइमलेस होती है, सनातन, और वो होती है मन की शांति पाने की प्यास। ये अकेली चीज है जो कभी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलेगी। आज से 20,000 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, और अगर इंसान बचा रहा तो आज से 10,000 साल बाद भी ऐसी ही होगी। बाकी सब कुछ बदलना चाहिए, जिसको हम रिचुअल वगैरह बोलते हैं, वो सब बदलना चाहिए। तो रिलीजन के नाम पर हम बहुत सारा पुराना बोझ ही ढो रहे हैं, और यही वजह है कि हम असली अर्थों में आध्यात्मिक नहीं हो पा रहे। मालूम है, ये बात आज की भी नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। जो विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो खुद कहते हैं कि जब तक तुम अपनी धार्मिक मान्यताएं अलग नहीं रख देते, जब तक तुम ये सब पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की बातें अलग नहीं रख देते, जब तक तुमने अपने दिमाग में ये जो 50 तरह की कहानियां बना रखी हैं कि ऐसा होता है फिर वैसा होता है और फिर ऐसे देवी ऐसे देवता, ये अलग नहीं रख देते, जब तक तुम अपने दिमाग से ये सब वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा अलग नहीं रख देते, तब तक तुम्हारे लिए मुक्ति संभव नहीं है। मैं ऋभु गीता से कोट कर रहा हूं। और ऐसी ही बात कितने ही ऐसे ग्रंथ हैं विशुद्ध वेदांत के, अद्वैत वेदांत के खासकर, जो कि साफ साफ कहते हैं, जो कहते हैं कि जिसको तुम अपना धर्म माने बैठे हो, जब तक उसको छोड़ोगे नहीं तब तक तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, और बिल्कुल इन्हीं शब्दों में, उनको बिल्कुल बिना किसी मिलावट के उद्धृत कर रहा हूं, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, माने सच्चाई की शरण में आओ। और वो धर्म ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो धर्म सच्चा कहाँ रहा? अगर धर्म ना आज है ना तब था, क्योंकि क्या होता है कि धर्म फ्रीज कर जाता है और समय के साथ फिर फॉसिलाइज कर जाता है, तो वो फिर आपके काम का नहीं रह जाता। आपके हाथ में क्या बचता है? बस धर्म का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो बचता है, जो उसके प्राण होते हैं वो आप कब के खो चुके होते हो। ये थोड़े वर्ड्स जो धर्म के आउटर स्ट्रक्चर के, कर्मा मुक्ति
ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, अनात्मन, निर्वाणा, साम्यक, समाधि, सम्यक समाधि, आवागमन, जाति, धम्मा। ये शब्द सुनने में बहुत मिलते हैं इंटरनेट पे, जो बाकी आचार्य जो हमारे हैं। नहीं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, और अगर कोई सिर्फ इनका ही असली अर्थ समझ ले तो उसका अध्यात्म सफल हो गया। लेकिन बहुत आसान है इनको विकृत करना, डिस्टॉर्ट करना, और सोचना कि मैं तो इनको जानता हूं। अब बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है ये थ्योरी ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, और 1000 में से 999 एकदम नहीं जानते कि कर्म सिद्धांत वास्तव में है क्या। क्यों? क्योंकि गीता में उन्होंने कभी गोता मारा ही नहीं है। तो लॉ ऑफ कर्मा के नाम पर अजीब अजीब चीजें चल रही होती हैं। भलाई करो भलाई मिलेगी, और पास्ट लाइफ, और व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और इस तरह की बातें चल रही होती हैं। इसका कर्म सिद्धांत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो किसी भी चीज को लॉ बना देते हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये बिल्कुल वाहियात बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो असली कर्म सिद्धांत है वो सिर्फ निष्काम कर्म योग है। लेकिन वो जानने के लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता के करीब जाना पड़ेगा। वो चीज हमको सुहाती नहीं, तो फिर हमको कोई बात समझ में आती नहीं। वैसे ही आपने लिखा जाति क्या है, आपने आवागमन की बात करी। किसका आवागमन और किसकी जाति? आप वेदांत के पास जाएंगे तो वहां तुरंत आप पर ये प्रश्न दागा जाएगा, किसका आवागमन होगा? आवागमन माने ट्रांसमाइग्रेशन। कौन है जो इस जन्म से दूसरे जन्म में जाएगा, या पिछले जन्म से इस जन्म में आया है? किसका आवागमन? इसी तरह से किसकी जाति? वज्रसूची उपनिषद है, उसमें जो शिष्य गुरु से पूछता है कि जाति के बारे में कुछ बताइए, कास्ट, वो कहते हैं किसकी जाति? जाति बताओ तो किसकी? शरीर सबका एक जैसा होता है, और आत्मा की कोई जाति होती नहीं, तो किसकी जाति? तो शरीर और आत्मा के अलावा एक ही चीज होती है, मन। तो माने ये जो जाति चीज है ये बस मानसिक है, माने काल्पनिक है, इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। जब आप मुक्ति की बात करते हो तो फिर स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। किसकी मुक्ति? जैसे ही आपने पूछा किसकी मुक्ति, अब आपको अपने भीतर जाके पूछना पड़ेगा कि बंधन में है कौन? क्योंकि लिबरेट तो आप उसी को करोगे ना जो बॉन्डेज में हो। तो कौन है मेरे भीतर जो बंधन में है? ये वेदांत का तरीका है, इतनी शार्प इंक्वायरी, और कुछ नहीं। वो नहीं कह रहा कि आप इस बात को मानो, इस कहानी में यकीन करो, ऐसा है वैसा है, ये वो कुछ भी नहीं। वहां पर ये सवाल है बार 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 बार, तुम कौन हो? कोहम, किसकी मुक्ति? लिबरेशन फॉर whom? And then you ask yourself, what within me is in bondage? And that leads you to the fundamental question of your identity. आप हो ही कौन? जो आप हो वही बॉन्डेज में है। और फिर व्यक्ति बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, क्योंकि आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी से ही जब गंदगी हटा दी गई तो आप गंदे अब रह कैसे लोगे? बाकी सब बाहर की गंदगियां बाहर बाहर रह जाएंगी, आप पर असर नहीं कर पाएंगी। इन्हीं बातों को अगर कोई समझ ले तो वो बहुत सारी बेकार की बिलीफ्स से मुक्त हो जाएगा, और उसकी जिंदगी ही दूसरी हो जाएगी। असल में किसी भी आदमी की जिंदगी में अगर सफरिंग है, सुनने में शायद आपको विचित्र लगे, लेकिन अगर कहीं भी किसी की जिंदगी में भी आप सफरिंग पाओ तो उसका मूल कारण स्पिरिचुअल इग्नोरेंस ही है, और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। हम कहना चाहते हैं कि देयर आर मटेरियल रीजंस, ये सब बता के हमें अच्छा लगता है, या हम बोलना चाहते हैं देयर आर एक्सीडेंटल रीजंस। हम कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर मेरे पैसे लुट गए इसीलिए मैं दुख में हूँ, हाँ, या कोविड आ गया, या कि मेरी पत्नी चली गई मैं इसलिए अभी दुख में हूँ। ये सब बातें सतही हैं। मूल में जो बात है वो ये है कि किसी को भी दुख
सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक होना हमारे अस्तित्व की, हमारी चेतना की मूलभूत मांग है। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो आप दुखी होंगे ही होंगे। I don't think लोग इतना centered है towards living a half-hearted life. I think either they convince themselves that it's a great life, or they want to do the 3 days. जैसे Friday, Saturday, Sunday वो कहाँ घूमने जाते थे, अभी spirituality की तरफ आते हैं। तो वो लोग कैसे relief पा सकते हैं spirituality से? देखिए, जब भीतरी मैकेनिज्म एकदम एक्लेमेटाइज हो गया हो, हमारे पास ना ये बड़ी एक दुखद दुर्भाग्यपूर्ण ताकत होती है एज ह्यूमन बीइंग्स। हमारा माहौल जैसा भी होता है हम उसे एडजस्ट कर ले जाते हैं। तो हमें फिर ये लगना बंद हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। हमारी जैसी जिंदगी चल रही होती है हम उसी में पूरे तरीके से खप जाते हैं, उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो उस समय पर तो यही जरूरी है कि या तो आपको जिंदगी कोई झटका दे दे और बता दे कि देखो तुम कितना गलत जी रहे थे और कितने भ्रम में जी रहे थे, या फिर आपको ऐसी कंपनी मिल जाए, ऐसी संगति मिल जाए जहां आपको झंझोड़ करके जगाया जाए कि भाई साहब आपको लग रहा है कि आप जगे हुए हो, आप जान रहे हो, पर वास्तव में आप सिर्फ सपने ले रहे हो, उठो। जिंदगी ठोकर देती है अगर, तो कई बार बड़ी निर्मम ठोकर दे देती है। तो वो मैं चाहता नहीं हूं कि मिले किसी को। और जिंदगी जब निर्मम ठोकर नहीं देती, छोटी मोटी ठोकर देती है, तो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, हम उसको झेल ले जाते हैं। और जो आधुनिक युग है इसमें तो शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत ही बढ़ गए हैं। हर तरह का इंश्योरेंस है, फॉल बैक मैकेनिज्म्स है। तो आपको फाइनेंशियल शॉक लगाओ, मेडिकल शॉक लगाओ, रिलेशनशिप में शॉक लगाओ। हाँ, मतलब अमेरिकन ने तो बंकर भी खोद लिए, न्यूक्लियर वॉर होगा हम उसमें भी जाके छुप जाएंगे। तो हमने हर तरीके से सिक्योरिटी का प्रबंध कर लिया ना। अनलेस एन एस्टेरॉइड एक्चुअली कम्स एंड हिट्स अस, फॉर प्रीटी मच एवरीथिंग एल्स वी हैव अ फॉल बैक ऑप्शन। तो इंतजार नहीं करना चाहिए कि जिंदगी इतनी बड़ी ठोकर दे कि उसके सामने हमारे सारे सिक्योरिटी मेजर्स फेल कर जाएं। क्योंकि अगर जिंदगी ने इतनी बड़ी ठोकर दे दी तो शायद हम मर ही जाएंगे, या शायद हम पागल हो जाएंगे। सुधार नहीं होगा, पागलपन मिल जाएगा। तो बेहतर तो ये है कि बंदा खुद ही सुधर जाए। अब बंदा खुद ही सुधरे कैसे? बंदा तो हो गया है पूरे तरीके से अभ्यस्त, बंदा तो अडेप्ट कर गया अपने एनवायरनमेंट से, उसने अपनी संगति भी ऐसी कर ली, उसके चारों ओर लोग भी वैसे ही आ गए हैं जो उसके ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। तो उसको ये इम्पिटस ही कहाँ से मिलेगा कि मुझे बदलना चाहिए? कहाँ से मिलेगा? फिर उसके लिए कहते हैं कि या तो ग्रंथ या फिर गुरु। गुरुओं का भरोसा नहीं, तो ग्रंथ सबसे अच्छे तरीके हैं। हमें आज के युग में बहुत आसानी से टॉप नॉच स्पिरिचुअल लिटरेचर अवेलेबल है, और अगर हम आज भी उसको पढ़ते नहीं हैं तो फिर उसकी कोई माफी नहीं है। What would you recommend for people who are interested in living with a philosophy? It depends on the orientation of the person. लेकिन जो हिंदी पढ़ते हो या जो इंग्लिश पढ़ते हो, अगर कोई हिंदी समझ सकता है तो उसको तो शुरू करने के लिए संत कबीर का जो साहित्य है वो सबसे अच्छा है। क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत पिडेंटिक है, आम आदमी की भाषा है। कोई आपको उसके लिए कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग नहीं चाहिए पहले से, कोई एलिजिबिलिटी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आप में जो फंडामेंटल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के वो इंस्टॉल कर देंगे। करेक्ट। तो वहां से शुरू कर सकते हो। फिर तो आपको ले ही जाएंगे कहाँ, फिर वो आपको और आगे ले जाएंगे। और जो लोग थोड़ा समझने में ज्यादा रुचि रखते हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप उपनिषदों से शुरू करो या भगवद गीता से शुरू कर लो। Just as you have research in the external field, similarly the scriptures are outputs of deep internal research. There have been generations and generations of people who have bothered to go deep within themselves, observe their mind, observe their tendencies, emotions, actions, and the entire world.
They have worked really hard. They have observed, they have meditated, they have thought deeply, and then they have presented their findings in these documents to you. It has taken centuries, for example, for the Upanishads to take shape. The Upanishads didn't get written in a day or in a month. The Upanishads are the output of, the summit of a Vedic process that continued for several centuries. And the Upanishads remained a work in progress for very long. So they are research documents that come from a process of deep honesty and patience and commitment to the truth. तो ये बंदे पे निर्भर करता है. जो लोग और ज्यादा सेरिब्रल होते हैं उनसे मैं कहता हूँ ज़ेन कोआंस, आप कोआंस शुरू कर लो. वो आपको सीधे यहाँ पर ही सीधे कॉन्फ्यूशियस हेडशॉट ऐसा झटका देते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाता है. Consider this koan illustrating the practice of no attachment. Two monks, Tanzen and Aikido, are traveling together down a muddy road. Ahead they see an attractive traveler, unable to cross the muddy path. Tanzen politely offers his help, carrying the traveler on his back across the street and placing her down without a word. Aikido was shocked. According to monastic law, monks were not supposed to go near women, let alone touch a beautiful stranger. After miles of walking, Aikido could no longer restrain himself. How could you carry that woman? Tanzen smiled. I left the traveler there. Are you still carrying her? Like all koans, this story has numerous interpretations. But one popular reading suggests that despite never having physically carried the traveler, Aikido broke monastic law by mentally clinging to the woman. जो आज हमें पूरा लिटरेचर उपलब्ध है उसकी रेंज बहुत ज़बरदस्त है. सवाल इसका नहीं है कि क्या पढूं, सवाल इसका है कि पढ़ने की नीयत भी है क्या. अगर पढ़ने की नीयत है तो आपके अपने अनुकूल किताब मिल जाएगी और उसमें बहुत मज़ा आता है. इट्स नॉट अ ड्यूटी ऑफ एनी काइंड, इट्स अ डिलाइट. सदगुरु की पहचान क्या है वो छोड़ दो, सुनने की आदत तो डाल दो. That reminds me of another quote. वो हम सदगुरु की पहचान में ज्यादा बिजी है. देखिए, मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इससे पहले कि हम अपनी बात कहें, बेहतर होगा कि एक बार को हम समझ तो लें कि जिन्होंने पहले कहा है उन्होंने क्या कहा है. मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाने के लिए नहीं कह रहा. मैं उनका फॉलोअर बन जाने के लिए भी नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूं कि इंसान के काम के किसी भी क्षेत्र में हम ये जानना चाहते हैं ना कि हमसे पहले वालों ने क्या करा है. ये हमने नहीं बनाया, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं. आप साइंस की किताब पढ़ते हो, उसमें यही तो लिखा होता है कि आपसे पहले वाले लोगों ने जो पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज है वो क्या इकट्ठा करी है. और वो करने के बाद आप एक अच्छे रिसर्चर बनते हो और हो सकता है कि आप खुद एक नया नॉलेज जनरेट कर लो. लेकिन आप कहो कि मैं रिसर्चर हूं, मैं नया नॉलेज जनरेट करना चाहता हूं और मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मुझसे पहले क्या हुआ है, तो ये बात कुछ जमेगी नहीं. इसी तरीके से आज के समय में बहुत जरूरी है कि हम पहले एक बार देख तो लें कि जो पीछे वाले लोग हैं वो बोल क्या गए हैं. निष्पक्ष तरीके से देख लें, न्यूट्रल होकर के. उसमें पार्टीशन होने की कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद हम में ये ताकत आती है, काबिलियत आती है कि हम अपनी सच्चाई को भी बयान कर सकें, क्योंकि फिर हमें पता होगा कि यही सच्चाई है.
नहीं तो खतरा क्या होता है कुणाल कि आप जब कहते हो कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं निडर होकर के, आपको कई बार पता भी नहीं होता कि वो आपकी अपनी बात है ही नहीं। अपना क्या है, मेरा क्या है, मैं क्या है, उसी को तो आत्मा कहते हैं ना। वेदांत उसी में जाता है, ये जानने के लिए कि वास्तव में मेरा क्या है। और जब आप जान जाते हो कि आपका क्या है, तो उस जानने के साथ ही वो निडरता भी आ जाती है जो आपको बिल्कुल मुक्त कर देती है अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए। एक बार मैं जान गया कि मैं हूं कौन, नकली क्या है, और नकली को मैं अलग करने के लिए तैयार हो गया। जो वास्तव में मेरा है उस पर मेरी अब जाकर के नजर थम गई। अब मैं बोलूंगा, अब मैं अपनी बात कहूंगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। उस बिंदु तक आने के लिए पहले हमें उनको पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने पहले कुछ बातें जानी है, बताई हैं। शायद हम डरते हैं कि जो पहले वालों ने बातें कही हैं हमने वो जान ली, पढ़ ली, तो ये एक मेंटल स्लेवरी हो जाएगी या इससे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इम्पीड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। थॉट प्रोसेस तो हमारा जन्म से ही इम्पीडेड है। जिसको हम फ्री थॉट कहते हैं वो वास्तव में कंडीशन थॉट है और वो जन्म से ही ऐसा है। जिनको मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं उनको पढ़ने से वो थॉट फ्री हो जाता है। और हम उल्टी गंगा बहाते हैं, हम सोचते हैं मैं फ्री हूं, लेकिन अगर मैं गीता पढ़ लूंगा तो मैं एनस्लेव हो जाऊंगा। बात उल्टी है। स्लेव तो हम बचपन से हैं, गीता पढ़ लेंगे तो कुछ फ्रीडम आ जाएगी, क्योंकि गीता के माध्यम से आप कृष्ण को नहीं फॉलो करने लग जाते, कृष्ण आपको अपने तक ले जाते हैं। आप कौन है, गीता के माध्यम से आपको पता चलता है कि आप जिसको मैं बोलते हो वो नकली है। तो नकली मैं से आपको फ्रीडम मिल जाती है। एंड दैट्स व्हेन यू राइज एज एन ऑथेंटिक एंड फियरलेस एंटिटी। दैट्स स्पिरिचुअलिटी। I have to admit that I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutra. I've never studied anything. हाँ, माँ चला लो फिर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। I am not only against religion or spiritualism, which is the debris of religion. I am against faith.